Yes, good afternoon, Saksham. गुड आफ्टरनून सर। सर वो चल गया था सर, जब मैंने डाउनलोड किया सर उसको फिर से, तो वो चल पड़ी सर जुपिटर मेरी। हाँ हाँ हाँ, चल पड़ेगी वो। यही है लर्निंग बेसिकली। जब आप ट्राई तो करो सर एक दो उसमें बार। से जुपिटर को सर हमें क्रोम पे खोलना पड़ता है सर, वो ऑफलाइन नहीं खुलता कैसे, जैसे वो ये ऑफलाइन, हम। वो तो उसका इंटरफेस का पार्ट है, वो ब्राउजर में ही खुलता है हाँ वो। जी हाँ सर। वो जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है उसी में खुलेगा। वो ठीक है ऑनलाइन सर। नहीं है, वो ऑनलाइन नहीं है बेसिकली। वो कौन सा नेट से चल रहा है? नहीं नहीं, हाँ जी सर, वो तो ठीक है सर बात। हाँ, वो उसके लिए सर कौन एक सा बस इंटरफेस खुलता है। इंटरनेट थोड़ी रिक्वायर्ड है उसके लिए। हाँ जी सर। हम्म। नहीं सर, वो कर लिया था सर, फिर से मेरा हो गया था। हो सकता है सर वो पुराना वाला कुछ एक्सपायर हो गया सर, उसमें से कोई डेल वगैरह हाँ, हो गया सर। उसके बाद चल पड़ा सर, मैंने फिर कर लिया कुछ तो ठीक है बस। ठीक है। ये कैमरा भी ऑन कर लो आप। हाँ जी सर, बस 1 मिनट में कर रहा हूँ सर अभी। यस, गुड आफ्टरनून श्रिया। Good afternoon, sir. And today we will take a few examples from dictionary. और बुक से अलावा आप कहाँ से हेल्प लेते हो इफ यू आर स्ट्रक? Sir, internet. इंटरनेट। सो इंटरनेट को भी हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। दैट इज अ लॉट ऑफ हेल्प इज अवेलेबल ऑन नेट। सो ये जुपिटर नोटबुक दिखाई दे रही है आप लोगों को? No, sir. Yes, now you will be able to see this. So we'll take simple examples today with regard to dictionary and how to access the items of the dictionary, and then we will do the program, the second program that is there in that PPT. कल का प्रोग्राम चला के देखा था? हो गया था सभी का? क्या श्रिया जो सेंड किया था प्रोग्राम वो चल गया था कोड? Sir, actually today I have to run that because yesterday I didn't get time. Today was our test. So that's why I was preparing for that test. ठीक है ठीक है ठीक है। So today we will start with the dictionary. So this is the dictionary I have created. So what you are looking at the dictionary, something important you are able to see. So check out the dictionary और बताओ इसमें क्या important क्या है, that is what is different in this. What do you think about this dictionary? Yes, Shriya.
So here in this dictionary, you have also included the list, that is the colors, including the list red, green, and yellow. तो बेसिकली इसके अंदर क्या है दैट वी हैव दिस इज द लिस्ट वी हैव यूज्ड क्लियर एंड rest this is integer type and these are the string value that we have assigned. एक जो इसके अंदर important चीज है that is this key is repeated here clear. So as you can see here जैसे पहली की है ब्रांड, दूसरी की है मॉडल, तीसरी की है ईयर और फोर्थ भी है ईयर clear. So if we have basically duplicate key, so then how it will be resolved in dictionary. अगर डुप्लीकेट कीज हो तो उसमें क्या इफेक्ट होगा डिक्शनरी में? एनीवन? So maybe it will compare the values of those same keys. नहीं, कंपेयर नहीं होगा. Yes, basically इस सिनारियो में क्या होता है when we have basically एक तो हमने डिक्शनरी की डेफिनेशन में बोला था कि that is the key should be unique. तो अगर डुप्लीकेट होगी तो उसकी यूनिकनेस तो चैलेंज हो जाएगी. तो इस केस में क्या करता है वो ओवरराइट कर देता है. क्लियर. द ओल्डर वैल्यू विल बी बेसिकली ओवररिटन बाय द न्यूअर वैल्यू. तो जैसे अगर हम इसको एक्सेस करें, सो इफ वी लेट्स से access the year value. Here, so you see the older value is this is the older value and this is the newer value. So this newer value will override the older one. So this is how the duplicate keys are resolved in dictionary. Clear? So this is the example that we have initiated with. ठीक है. So second dictionary I am going to create. So that will basically take upon the इसी में ही चेंज कर देते हैं. That is brand is Ford, then electric, false, and then here is this. Okay. So if I have to print all the values of this dictionary, so how I can do that? Yes, रोमिका आप बताओ. रोमिका, so I think Romika is not available. Yes, मुस्कान आप बताओ. अगर मैं ये सारे डिक्शनरी को प्रिंट करना है तो कैसे करूंगा? Yes, Vanshika. Sir, then we will write the code like print this dict and brackets in brackets print brackets in brackets we write this dict. Clear. So here there is problem the model. Basically comma नहीं डाला हुआ. Clear. So like this we can print all the elements. So first we have a this is a जो ब्रांड की है इसके साथ हमने स्ट्रिंग वैल्यू साइन की हुई है. दैट इज ब्रांड नेम वी हैव असाइंड दिस. देन इलेक्ट्रिक जो की है इसके साथ हमने ये लॉजिकल वैल्यू फॉल्स इसके साथ डाली हुई है. मॉडल के साथ अगेन स्ट्रिंग टाइप, ईयर के साथ इंटीजर टाइप एंड कलर्स के साथ हमने डाली हुई है लिस्ट. सो बेसिकली वी हैव यूज्ड द डाइवर्सिफाइड वैल्यूज इन द डिक्शनरी. सो दैट इज द डिक्शनरी के अंदर ये भी है कि दैट इज वी कैन यूज द मल्टीपल डाटा टाइप्स इन डिक्शनरी. नेक्स्ट वी विल सी कि
अगर हमने इसकी टाइप चेक करनी है तो टाइप कैसे चेक करते हैं, वेदर दिस इज ए डिक्शनरी और नॉट। अगर हमने चेक करना हो फ्रॉम द सिस्टम दैट दिस इज ए डिक्शनरी और नॉट, सो हाउ वी डू दैट? वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, वैसे तो हमें देख के पता चल रहा है कि दिस इज ए डिक्शनरी, बट अगर हमने सिस्टम से पता करना है कि ये डिक्शनरी है, लिस्ट है, क्या है, ये स्ट्रिंग है, क्या है, दिस सो हाउ विल डू दैट? यस वंशिका? By using type Yes, and in yes. bracket this dict. Yes, so by using this type, ये type जैसे हमने लिस्ट में भी यूज किया था, so the same way we can use it in, ठीक है, here this also। ठीक है जी, next is that is similarly if we have to check the length of the dictionary, so how we do that? Yes, Mehak? सर लेंथ डिक्शनरी, लेंथ फंक्शन यूज करके। लेंथ फंक्शन यूज करेंगे और रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? व्हाट विल बी द रिजल्ट? 5। So 5 will be the result. Clear? So because now the 5 items are there inside the dictionary. So this is how we use the basic operations on the dictionary. और जो एक हमने important किया था, that is how we use that is that अगर हमारे पास duplicate है, ठीक है, जैसे I take the again the example is, जैसे year को हम ले लेते हैं, that year is the duplicate value, तो प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी? ओवरराइट हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दी न्यू वैल्यू। क्लियर? सो इफ आई वांट टू चेक इट आउट दी ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, तो आई विल गेट 2000 बट नॉट दी ओल्डर वन वैल्यू। क्लियर? So the newer value will override the old value. इसको हम पहले कर लेते हैं। Clear? Now you see the result is 1964। तो अब हमारे पास ओल्ड वैल्यू कौन सी होगी? 2000, और उसके बाद कौन सी वैल्यू आ रही है? 1964। So this will replace that one। The next is basically we will take up a question, जो second question था हमारा, the second question was that is create a dictionary for a month। और इसमें हमने क्या करना है? We will ask the user to enter the month name and the system will display the number of months। ये year को छोड़ दो आप, don't consider this, जैसे ये year लिखा है, number of years for a user, so you skip this one। क्वेश्चन में है, I am repeating the question, create the dictionary। So just for a while, maybe किसी ने अनम्यूट किया हुआ है। So this is the question। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? दैट इज यू हैव टू क्रिएट ए डिक्शनरी फॉर मंथ। मंथ के लिए हमने डिक्शनरी क्रिएट करनी है, एंड देन वी विल आस्क द यूजर टू एंटर द मंथ, जैसे हमने कल एंटर किया था नेम ऑफ द स्टूडेंट, और जो उसका रिकॉर्ड था, उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका फील्ड, वो डिस्प्ले हो जाए। एंड द सिस्टम शुड डिस्प्ले द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। को मंथ को एंटर करें और उसका नंबर ऑफ डेज डिस्प्ले हो जाए। ठीक है? सो आई विल आल्सो स्टार्ट अलोंग विद यू। ठीक है? तो बेसिकली जो डिक्शनरी क्रिएट करनी है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स होंगे लाइक द फर्स्ट मंथ इज जनवरी। क्लियर? एंड इट्स corresponding value is 31। then the second value is key is February,
and its corresponding one is at 28 and like this. So this way you have to create the dictionary. So 31 days are the, so like this you create the dictionary and then ask the user to input the name of the month, and then the number of days for that particular month will be displayed on the screen. हो जाएगा? So Priyanka has raised the hand. Yes, Priyanka. जैसे हमने वैल्यू की है फरवरी की 28, तो अगर 28 और 29 हम दोनों रख दें तो ऐसा हो सकता है? 28 और 29 दोनों रख दें तो डिस्प्ले तो यस सर, तो कौन सी वैल्यू? दो वैल्यू कैसे वहां पे डाल देंगे हम? तो देन वी विल हैव टू मेक यूज कि किसको डिस्प्ले कौन सी करवानी है ना, दैट विल बी दी सॉर्ट ऑफ ए क्वेश्चन विद अस कि कौन सी हम किसको हम लेके चल रहे हैं. पहले यू शुड डू विद द फर्स्ट वन सिंगल वैल्यू. वी कैन टेक मल्टीपल वैल्यूज. ये थोड़ी है डिक्शनरी में हम एक ही वैल्यू दे सकते हैं. वी कैन टेक अप मल्टीपल वैल्यूज आल्सो. क्लियर? बट यू फर्स्ट डू विद, आप दोनों में से कोई एक वैल्यू लेके इसको सॉल्व करो एंड देन वी विल टेक अप दैट हाउ वी कैन टेक अप मल्टीपल वैल्यूज आल्सो. Is 30 days. So this is how we have created the dictionary. The step number 2 is that is how to fetch a particular asked to enter the name of the month, and we have to display the number of days. Clear? So the next step is basically moving to the dictionary. Yes. So the next step is, who will tell the next step? Yes. Yes, Navdeep Singh. Yes, Priyanka. सर प्रिंट ही करवाना है. प्रिंट ही करवाना है, ठीक है. सर ये नवदीप भी टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर रहा है. हाँ जी सर ये नवदीप टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर रहा है जूम मीटिंग की. हाँ, और भाई नवदीप तू शेयर करी जा रहा है लिंक. सर क्या किया मैंने? शेयर हर्षिता तो लड़की है, तो लड़के हैं. क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो. यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन. हाँ जी सर, मैंने आंसर सर मैं बताया तो था. हाँ बताओ क्या है.
सर प्रिंट सर एक नवदीप नाम से अकाउंट से आई थी और एक महक नाम से अकाउंट से आई थी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मुंडे दे बाजा कट ला। So next step is basically that we have to ask for the user to input a month. Clear? So how we will do that process? Asking the user to input the month. So who will do this operation? Yes, Saksham? Yes, sir. अब करना क्या है प्रोग्राम के आगे? यस सर पूछिए। अरे आई एम आस्किंग यू, आप वैसे आगे यस सर पूछिए। अरे नहीं सर, मैंने टाइप कर दिया सर। अब वो इफ भी लगाएंगे सर इसके आगे, अगर वो मांगेगा तो कुछ इसके इस पे तो। So basically we have to put here that the user will enter here the month. Clear? So input the enter the month name. Clear? So this is the first step, that is we'll be asking the user to input the number. The next is basically we have to compare which value has been entered by the कि यूजर ने कौन सा मंथ इनपुट किया है. So how will do that process? What is the next step? Yes, Harshita. बताओगे नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर पता नहीं। ठीक है, यस भव्य। तो पहले हमने डिक्शनरी एंटर करवा दी, उसके बाद हमने चॉइस पूछ ली कि कौन सा मंथ उन्होंने एंटर किया है। Yes. उसके बाद हम इफ एल्स यूज करेंगे और साथ में मेंबरशिप ऑपरेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे कि जो इफ एन इन मंथ देन प्रिंट, मतलब नेक्स्ट में प्रिंट ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में फिर एन, ताकि वो उसकी वैल्यू प्रिंट करें। और फिर एल्स के साथ हम प्रिंट करेंगे नोट। ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली आपने जो लॉजिक बनाया है दैट इज इफ एल्स से बनाया है, ठीक है, वेदर द मंथ इज अवेलेबल इन द लिस्ट और नॉट, ठीक है। यस, हु विल हेल्प मी आउट हियर? यस श्रिया, आपका क्या है लॉजिक? So we can directly print the value of the number of days in the month by using print bracket dict square bracket n. ठीक है, डिक्ट नहीं आएगा, बेसिकली यहाँ पे डिक्शनरी मंथ है हमारी। Sir, actually I have made the program in that I have used dict. चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं इसमें। दैट इज नेक्स्ट इज बेसिकली वी हैव टू सप्लाई हियर दी दैट इज द वैल्यू क्या है मंथ की n, ऊपर हमने n मेंशन की है। क्लियर? तो जस्ट पहले इसको सिंपली इसको चेक करके देख लेते हैं एंड देन वी विल, जैसे भव्या ने बोला है दैट इज वी विल ट्राई इट आउट। भव्या वो स्नैपशॉट मेरे को भेज देना, व्हाट आर द प्रोग्राम यू हैव मेड, उसकी स्नैपशॉट भेजो आप उस टाइम तक। तो मैंने पेंसिल के साथ लिखा है, वो भेज दूं? हैं? कैसे? हाँ, हैंड रिटन ही भेजना है, और कैसे भेजना है? भेजो भेजो। So let's the month is, let's say we entered December. So the number of days are here
31. Clear? So if we, let's say, enter here, let's say the month is June, so this is the answer. But इस केस में क्या है हमारे पास, इस सिनारियो में कोई ड्रॉबैक बता सकता है इस सिनारियो का? So here nothing will print if the value does not compares with the list. हाँ, तो It's इस not सिनारियो in the में क्या है, जैसे हमने तो प्रोग्राम बना लिया है, उसके अंदर एक ही मैकेनिज्म को हमने सेटल डाउन किया है कि अगर तो जो यूजर वैल्यू डाल रहा है अगर तो वो उसके साथ मैच कर गई मंथ के साथ, तो देन इट्स फाइन, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी सॉर्ट ऑफ रिजल्ट। तो उस केस में क्या होगा, वी विल सी दी सिनारियो। जैसे अगर यूजर ने कोई रॉन्ग इनपुट दे दी है, सो रन दिस वन। सो लेट्स से कि जनवरी के स्पेलिंग ऐसे डाले हुए हैं। क्लियर? सो यू सी हियर व्हाट इज द एरर इज, दैट इज की एरर आ जाएगा। की एरर मींस कि जो डिक्शनरी की है उसके साथ कुछ मैचिंग नहीं हो रही। क्लियर? सो वी हैव ए बेसिकली रॉन्ग वैल्यू ऑफ द की, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग हियर की एरर। तो इसको मैकेनिज्म को सॉर्ट आउट करने के लिए लेट्स से बनाओ इसको। ट्रेस बैक कैसे करते हैं? किसमें? ये इसमें कह रहा है ना ट्रेस बैक मोस्ट रीसेंट कॉल, तो सर वो कैसे करते हैं? ट्रेसिंग बेसिकली होता है, डिबगिंग के लिए होता है, हाउ वी डू दी ट्रेस ऑपरेशन। सो वो ट्रेसिंग के ऊपर भी साथ साथ कर रहा हूं, तो मेरा भी ऐसे ही आ रहा है कि मैंने लिखा था तो गलत हो गया, पर अब इसे मैं सही कैसे करूं? पूरा वो फिर से लिखना पड़ेगा क्या कोड जो है? नहीं सारा क्यों है, तो इसी को रेक्टिफाई कर लो ना। ओ भैया प्रोग्राम को रेक्टिफाई करो, दोबारा क्यों लिखना है उसको एडिट कर लो। उसको गलती ये हुई कि मैंने अपनी डिक्शनरी में सर अगस्त में ए बड़ा किया और उसमें गलती से वो छोटा हो गया है। सर उसको क्या कहते हैं, सही करने का एक बार दिखा दो जो भी आपने लिखा। मैंने क्या सही किया है? मेरे को तो आपका क्वेश्चन ही नहीं क्लियर हो रहा है। नहीं सर, जैसे आपने जैन लिखा है तो उसमें की एरर दिया है, तो सर मैंने वैसे ही अगस्त में गलत लिखा है तो उसने मुझे भी की एरर दिया है। तो सर ये की एरर एक बार सही करना दिखा दो सर इसमें। ओ भाई यही तो, इसी के ऊपर तो फोकस कर रहे हैं हम लोग। हम कौन सा बोल रहे हैं कि इस मैकेनिज्म को हाउ बेसिकली वी हैव टू हैंडल, कि हमारा लॉजिक ही अभी हमारा लॉजिक ही पार्शियल है। अभी तो हमने बस एक ही लॉजिक के ऊपर फोकस किया कि अगर हमारी वैल्यू मैच कर जाती है सो व्हाट एक्शन विल टेक प्लेस। अगर वैल्यू मैच नहीं कर रही सो हाउ दिस विल बी हैंडल्ड। तो उसी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि दैट यू हैव टू राइट द कोड, अपडेट द प्रोग्राम। सो यस, यहाँ से एक ये वंशिका ने लिखा है प्रोग्राम। ठीक है, सो विल गो विद द वंशिकास whatever the logic she has used. ठीक है जी। सो फॉर आई एंड जे इन लूप के साथ इसने किया है, फॉर आई एंड जे इन month dot items. Month is basically the items. So if I is equal to, we have written here n, ठीक है जी। So then print
so day is basically for the number of months and break this one. Else so let's say we do with this one, enter the, अगर हम wrong enter कर रहे हैं, clear, so we will get here the message that the month is wrong and how we have to rectify. You see here कि ये कितनी बार है, जितने एलिमेंट्स हैं मींस वी हैव अबाउट 12 एलिमेंट्स इन द लिस्ट, तो उतनी बार हमारी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है. सो हाउ वी हैव टू बेसिकली रेक्टिफाई दिस सिनेरियो इन द प्रोग्राम. तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं हाउ द वंशिका हैज डन हियर इन दिस वन. आपको पता है आइटम्स के अंदर आइटम कंटेन्स टू पार्ट्स, वन इज द की एंड सेकंड इज द वैल्यू. तो I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? I इज रिप्रेजेंटिंग द कीज एंड J इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू. तो मंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, क्लियर, सो दिस J इज गोइंग टू प्रिंट आउट. सो विल आल्सो टेस्ट द अदर पार्ट कि अगर वैल्यू सही है तो जून. सो इस केस में भी मंथ इज स्पेल्ड रॉन्ग, ये चली जा रहा है हमारा. और 30 सही आउटपुट भी आई जा रही है, सही आउटपुट भी आ रही है और ये मंथ इज नॉट स्पेल्ड रॉन्ग. तो देयर इज सम इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड इन दी प्रोग्राम. ये मेरे हिसाब से इंडेंटेशन से सॉल्व हो जाएगा. इफ वी प्लेस द एल्स हियर, तो आई थिंक देन दिस विल बी सॉल्व्ड आउट. जैसे मैं अगर इसके अंदर जून एंटर करता हूं, सो जून के केस में इट्स वैल्यू हैज नॉट बीन प्रिंटेड. तो जून की वैल्यू आ गई हमारे पास 30. और अगर मैं रॉन्ग स्पेलिंग एंटर करता हूं, सो लेट्स से JUN एंटर करता हूं, सो यू सी दी मंथ इज स्पेल्ड रॉन्ग. तो दिस इज अ वेरी गुड वे दी वंशिका हैज रिटन द कोड, क्लियर. तो इसमें क्या है हमारे पास, वी आर डूइंग इट विद द लूप. तो जैसे ये है कि अगर जो यूजर जो है ही इज नॉट इनपुटिंग द करेक्ट वैल्यू, अगर यूजर जो है वो रॉन्ग वैल्यू को नेम एंटर कर रहा है, सो इन द एल्स पार्ट वी विल डिस्प्ले दैट यूजर हैज एंटर्ड ए रॉन्ग मंथ. सो भव्या हैज, I have also sent you the code. अब चलो कोई बात नहीं, अब आपका भी कोड आ गया. सो आई विल सी हाउ यू हैव डन दिस वन, बिकॉज ये लाइव क्लास में इट्स डिफिकल्ट टू डू मल्टीपल प्रोग्राम्स. सो कंसंट्रेशन गेट्स, सारे प्रोग्राम को देखना मेरे लिए चैलेंज है. बाद में मैं देख सकता हूं ये प्रोग्राम्स को, बट द क्वेश्चन हियर इज दैट हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दिस सिनेरियो. कि प्रोग्राम के अंदर बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एज देयर वाज ए डाउट रेज्ड बाय मिस्टर सक्षम. और सक्षम यार अपना ये अब आधे बंदे तो क्लास वाले ही हैं जो कैमरा ऑन नहीं करते, और आधे स्टूडेंट्स ये हैं, ये घूम के क्लास के अंदर एंटर करते हैं 12:15 पे, 20 मिनट पे. सो टुडे आई विल नाउ ऑनवर्ड्स 12-15 के बाद मैं कोई भी स्टूडेंट्स आई विल नॉट टेक अप इनटू द क्लास. यू सी, ऐसे ही इंट्रूडर कोई ना कोई एक दो घुस जाएगा और किसी की और आईडी को यूज करके किसी का और नाम यूज कर लेगा. यू हैव सीन हियर कि भव्या के नाम से 2 एंट्री थी यहाँ पे, क्लियर. सो समवन, अब मेरे को कैसे पता चलेगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा? सो आई कैन ओनली फेच दी स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को मैं बाई फेस जानता हूँ. Clear? So if you will not cooperate, so the idea of this sort of class will basically die away. So नहीं सर, मैं कैमरा ऑन रखता हूँ, पर सर जब कोडिंग कर रहा होता है सर उस पे तो फिर बंद कर देता हूँ फोन नीचे रख के ना, तो सर इसीलिए होता है सर थोड़ी देर. हाँ चलो कोई बात. So see here, that is our main aim here is that we have to adjust the other part. अगर हमारी वैल्यू करेक्ट है तो इस लूप में से वो मंथ डिस्प्ले हो जाएगा.
or if we have entered a wrong value, so in the else part the message will be displayed that the month is spelled wrong, उसकी wrong value आपने enter की हुई है. So there are no, किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए there is not the single mechanism is available. We have huge number of mechanism, बहुत सारे methods हैं हमारे पास जिससे हम एक प्रोग्राम को कर सकते हैं. But the key thing is that that you have to practice all these things. ये देखने में डिक्शनरी बड़ी इजी है, ठीक है, बट you जब तक हमारी इसमें प्रैक्टिस नहीं होगी, so we'll be not able to do the justice with this. ठीक है. और +2 में एडवांस जितने भी प्रोग्राम हैं, एडवांस जैसे +1 to +1 के बाद +2 में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, डिक्शनरी बिकम्स द मेन डाटा टाइप. सारे प्रोग्राम जो है, अगर आपने डाटा फ्रेम क्रिएट करना है तो वो डिक्शनरी से ही क्रिएट होगा. So it's very very important that you practice on this data type a lot. हाँ जी, यस सक्षम, क्या है आपकी क्वेरी? सर एक बार फिर से दिखा देना, मैंने सर एक चीज शायद बीच में छोड़ दी. So you can note down the program also. तो यस, जैसे मैंने श्रिया आपका देखा है प्रोग्राम, तो उसके अंदर यू हैव यूज्ड दी कीज, ठीक है. सो n in keys, so that may be the other method. We can try it out here also. तो बट आपको ये आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर यू नीड लूप आल्सो, आई थिंक सो. जैसे आपने लिखा है if n in dict keys. So I have used membership operation. अच्छा, ठीक है. तो ठीक है जी. The next one is here is if n in month डॉट, आपने ये कीज मेथड का यूज किया है. ठीक है. सो प्रिंट and in the else part is wrong input. Clear. So let's say we enter here July and we get the number of days, and if we enter the wrong input. Clear. So this is the second method. So first method is मेथड 3 हो गए हमारे पास. और फर्स्ट मेथड तो था सिंपली जिसके अंदर हम जस्ट उसको प्रिंट ही कर रहे थे. क्लियर. और सेकंड मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल नहीं था. सो देन वी हैव यूज्ड ए मैकेनिज्म जिसके अंदर हमने लूप से यूज किया है एंड इसके अंदर आइटम्स का यूज किया है, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर ये जो हमने कीज मेथड का यूज किया है. सो कीज आर बेसिकली यूज्ड टू की एक्सेस द कीज. ऐसे ही हमारे पास वैल्यू से हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं और आइटम से कंप्लीट आइटम को एक्सेस कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आइटम को एक्सेस किया है. द इंपॉर्टेंट थिंग इज, मेरे को लगता है यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, ये आई एंड जे अगर ये मैं यहाँ से किसी से पूछ ही लेता हूँ, नो वन इज बेसिकली बॉदरिंग अबाउट. यस हर्षिता, आप बताओ ये आई एंड जे किसको रेफर कर रहे हैं इन दी प्रोग्राम? ये प्रोग्राम I, हाँ sir, I is referring to the key and J is the value.
j is the value. So that's very very important कि बाद में आपको ये भी कंफ्यूजन होगा ये i और j किस किस को रेफर कर रहा है, ठीक है जी। तो i में हम कंपेयर कर रहे हैं कीज को n के साथ, और जो प्रिंट कर रहे हैं दैट इज वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी बेसिक्स ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है, ठीक है। एंड बेसिकली यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। सो टुडे जैस्मीन हैज आल्सो जॉइन्ड द क्लास। जैस्मीन समझ आ रही है प्रोग्राम्स की? यस सर। देखो 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 मैं आपको ना बेटा आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूँ। प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, डोंट से दी फॉर दी सेक कि मैंने पूछ लिया, यू शुड से। जब आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना इसके अंदर, सो नथिंग इज डिफिकल्ट इन पाइथन। बट ये है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उसको बेनिफिट मिल रहा है। रेगुलर स्टूडेंट को क्या है कि उसको पता है कल क्या हुआ है, परसों क्या हुआ है, एंड ही इज एबल टू रिलेट। जैसे मैंने हर्षिता से क्वेश्चन पूछा, so I know the Harshita will be able to reply the question because she knows the background of the question. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम सारे मेहनत करके एक लेवल पे आ जाएं, ठीक है। तो जिसका जहां जहां डेफिशिएंसी है, ये देखो आप लोगों को ज्यादा पता है कि आपकी डेफिशिएंसी कहां पे है, किसी की भी कोई डेफिशिएंसी है। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीवन। तो ये है कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे आज भी मेरे को कोई स्टूडेंट पूछ रहा है कैसे पाइथन इंस्टॉल करनी है, मैं तो फरवरी तक बताता रहूंगा। कोई फरवरी के मंथ में भी पूछेगा, मार्च में भी पूछेगा कि कैसे इंस्टॉल करनी है, आई विल बी टेलिंग दैट। इसमें क्या है, जो जिस दिन स्टार्ट कर रहा है, सो दैट इज नॉट द पॉइंट कि मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करूं। बट मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा अगर आप लोग अपनी साइड से एफर्ट नहीं बढ़ाओगे, सो देन हमारे पास सिर्फ छोटा सा पूल रह जाएगा, दोज हु आर अंडरस्टैंडिंग दी लेक्चर। बाकी आप लोगों को लेक्चर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगना लग पड़ेगा। इसीलिए मैं आई एम टेकिंग मोर टाइम ऑन डिक्शनरी, कि ये नहीं है कि मैं भाग के अगले टॉपिक को कैच कर लूं और प्रीवियस टॉपिक के ऊपर नो स्टूडेंट में भी लैगिंग है। यस गुरलीन? हाँ जी सर, मैंने भी आपको कोड भेजा सर। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आई विल सी, बिकॉज देखो मेरे लिए एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है, आई हैव टू चेक आउट द क्लास आल्सो साइड बाय साइड। अगर मैं बहुत ज्यादा कोड के बीच में घुस जाऊंगा, सो दैट विल बी ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फॉर मी। तो जो भी मैं जल्दी साथ साथ में कर पाता हूँ, सो दैट आई कैन डू। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास अटेंड करने की, मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि क्लास को सक्सेसफुली रन करने के लिए। सो आई विल चेक आउट द कोड वट एवर द कोड इज। और बेस्ट ये है, बेस्ट सिनेरियो क्या है, दैट इज आपने कोड बनाया है, आप उसको रन करके देखो, एंड इफ इट इज रनिंग सक्सेसफुली, ठीक है, या आपको थोड़ा बहुत उसके ऊपर एफर्ट करना पड़ता है, सो उसी में आप लोगों की लर्निंग है। अगर आप जस्ट क्लास के अंदर बैठे हो आराम से, सो that is not the way that you will learn the program. Yes, at the end of the lecture और किसी का कोई question है, so you can ask any other question you have. So we'll keep on collecting few more programs from Monday onwards on the dictionary itself, and then we will switch to the next topic. और आप लोगों का कोई suggestion होता है कि ये topic हमें difficult लग रहा है, so you can bring those point also. सर एक चीज पूछी, जैसे सर हम पहले पाइथन आइडल पे करते थे कोडिंग सर, शुरू में साथ में, सर ये सब जो आप जुपिटर पे कर रहे हैं उस पे नहीं होती थी क्या? देखो पता क्या चक्कर है, देखो आइडल आप थोड़ा सा ना, थोड़ी सी उसकी, अगर क्वेश्चन अच्छा है आपका, बेसिकली आइडल जो पैकेज है वो 30-40 MB का पैकेज है। अब उसमें पता क्या होता है, जैसे आप लोग आज काम कर रहे हो डिक्शनरी के ऊपर, कल आपने पांडास का प्रोग्राम बनाना है, फिर आपने डाटाबेस कनेक्टिविटी का प्रोग्राम बनाना है। तो आइडल में क्या करना पड़ता है, हमें वो सारे के सारे पैकेज एक एक करके इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जबकि जुपिटर नोटबुक में क्या होता है, वो सारे के सारे जो पैकेजेस हैं वो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। कोई एक आधा पैकेज, मेरे को पता है जो मैं +2 वालों को पढ़ाता हूं, तो उसके अंदर में एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ा। तो अगर आज आपने आइडल इंस्टॉल कर लिया, कल आपको ये नहीं समझ आ रही कि ये इंस्टॉल कैसे करना है, सर ये मेरे से ये पैकेज नहीं इंस्टॉल हो रहा, मेरे से ये पैकेज नहीं इंस्टॉल हो रहा, तो हम एक मुश्किल से निकलेंगे, दूसरी में फंस जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ, पहले दिन से हमने जुपिटर नोटबुक के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर द नंबर ऑफ पैकेजेस आर ह्यूज, उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस पहले ही पड़े हुए हैं, तो वो हमें बार बार इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, ठीक है। तो वैसे अगर कोई आइडल में काम करना चाहते हो, आई डोंट हैव एनी डाउट ऑन दैट। नहीं सर, पहले मैं आइडल पे ही काम कर रहा था सर बड़े टाइम से, फिर बाद में पता चला कि अब तो जुपिटर पे करना है। हाँ नहीं करना नहीं है, कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है,
but Jupyter interface is far user friendly as compared to the इजी है इस पे करना। हाँ, इसमें इजी। सो और किसी का कोई क्वेश्चन है भाई? सो थैंक यू वेरी मच। और थोड़ा सा क्लास के अंदर थोड़ा कोऑपरेट करो, कैमरा ऑन रखा करो और टाइम पे क्लास के अंदर एंट्री करो, सो दैट नो वन एल्स हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू द क्लास शुड एंटर इनटू द क्लास। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच मैडम। Thank you, sir. थैंक Thank you. Thank you, sir. यू।